آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن میں 9 جبکہ ملک بھر میں 12 مہاجر نشستوں سمیت 21 سیٹوں پر پولنگ جاری۔ راولپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور، چکوال، حافظ آباد، اوکاڑہ، رحیم یار خان، سیالکوٹ میں 12 لاکھ سے زائد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے۔ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات، آزاد امیدوار بھی الیکشن کے میدان میں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی سمیت 16 سیاسی جماعتیں مد مقابل۔ راولپنڈی میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر 34 امیدوار مد مقابل۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,000 سے زائد۔ مجموعی طور پر 192 پولنگ سٹیشن قائم۔ وہاڑی میں کشمیر کی 2 نشستوں پر پولنگ۔ ووٹرز کی تعداد 121، 64 مرد اور 57 خواتین شامل۔ وہاڑی میں 3، بورے والا اور میلسی میں 1 پولنگ سٹیشن قائم۔ فیصل آباد 2 نشستوں پر ووٹنگ، 7 پولنگ سٹیشن، 5 تاندلیا والا اور 2 پولنگ سٹیشن کوتوالی اسکول میں بنائے گئے ہیں۔ 267 ووٹرز رجسٹرڈ۔ حافظ آباد میں کشمیر کی نشست پر پولنگ۔ LA-35 جموں 2 میں 16 امیدوار میدان میں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10,105۔ ضلع بھر میں 16 پولنگ سٹیشنز اور 31 بوتھ قائم۔ LA-35 جموں 2 میں حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے شامل۔ گجرات سے قانون ساز اسمبلی کی نشست پر LA-38 جموں 5 میں 11 امیدوار میدان میں، 50,225 رجسٹرڈ ووٹرز، 75 پولنگ سٹیشنز قائم۔ پسرور حلقہ LA-35 جموں 2 میں 41 پولنگ سٹیشنز پر 25,450 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، IPP سمیت 16 امیدوار مد مقابل۔ مندی بہاؤدین میں جموں کشمیر حلقہ LA-38 میں الیکشن۔ سرائے عالمگیر میں کشمیر کی نشست حلقہ LA-38 جموں 5 میں 5 پولنگ سٹیشنز قائم۔ 2000 مہاجر ووٹرز اپنے حق کی رائے دہی کو استعمال کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشست LA-45 ویلی 6 اور LA-39 جموں 6 پر پولنگ۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,655۔ مرد ووٹرز کی کل تعداد 4,121۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 3,534۔ 41 پولنگ سٹیشنز، 5 مردانہ، 10 خواتین کے لیے جبکہ 26 مشترکہ ہیں۔ دوسرے حلقے میں 1,520 ووٹر، 2 پولنگ سٹیشن قائم، 70 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ کراچی میں مقیم کشمیری بھی قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جموں 1 اور کشمیر ویلی 1 کی نشست پر پولنگ جاری۔ شہر قائد میں قانون ساز اسمبلی کی دونوں نشستوں کے لیے 34 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ جموں 1 کی نشست پر 698 رجسٹرڈ ووٹرز، کشمیر ویلی 1 کی نشست پر 4,200 رجسٹرڈ ووٹرز۔ سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات۔ قائد-اعظم ایکشن کمیٹی کا مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں ختم کرنے کا بے معنی مطالبہ۔ حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کا بھرپور رد عمل، کہتے ہیں پاکستان میں مقیم لاکھوں مہاجرین کشمیر کا حق رائے دہی ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طبقے کے حقوق کی خاطر دوسرے کے آئینی اور جمہوری حقوق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا LA-27 کا ملتوی ہونے والا الیکشن 4 اگست کو کرانے کا اعلان۔ غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں شدید بارش سے درخت گرے، روڈ بلاک ہوئے، لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث الیکشن ملتوی کیے۔ تشدد اور دیگر کوئی حربہ تبدیلی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے تبدیلی آتی ہے۔ بلوچستان میں بھی آزاد جموں کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کا عمل شفاف، منظم اور خوشگوار ماحول میں جاری۔ کوئٹہ سمیت 9 اضلاع میں مقیم کشمیری ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ خواتین اور مرد ووٹرز کی بھرپور شرکت۔ LA-24 جموں 1 اور LA-40 ویلی کے حلقے شامل۔ ووٹرز پرامن ماحول میں پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر موجود۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतखाबी बेज़ाब्ती की बाकायदा शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी। अज़ादा न होने की सूरत में तीसरे मरहले के बाइकआउट की धमकी भी दे दी। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पोलिंग अमला और मटीरियल एक दिन पहले पहुंचना होता है। जब हमारे पोलिंग एजेंट्स पहुंच सकते हैं तो अमला क्यों नहीं। LA 27 और 28 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत हलके हैं। दोपहर 12 बजे तक मुतालिका हलकों में अमला पहुंचा ना इंतखाबी सामान। मीरपुर के इलेक्शन में हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पाक वतन के पोलिंग स्टेशन से भी हमारे एजेंट्स को निकाला गया। आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई? बगैर ठोस सबूत इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी नताइज का इंतजार करे। सीनियर रहनुमा नून लीग अमीर मकाम का मशवरा। कहते हैं ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। बेहतर होता ये अवाम से पूछते इन्हें वोट क्यों नहीं दिया गया। अगरचे धांधली करने वाली जमात खुद इसका एतराफ कर चुकी है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में हमारी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा। अगर तब कार्रवाई की जाती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। इस्लामाबाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं धांधली के खिलाफ एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात के मुतालबे का हक रखते हैं। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है। हमने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन छीना गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी कमर जमान कायरा कहते हैं हमने मखसूस हालात की वजह से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 3 मराहिल में तस्लीम किए। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला किया गया। हमारा जियाला फायरिंग से शहीद हुआ। जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद भी हक़ राय दही के इस्तेमाल और पुरअमन मनपसंद उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए मुतहरिक। पेशावर में कानून साज असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन। माजूर शहरी व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंचा। कहता है वोट देना हर शहरी की जिम्मेदारी। जिस्मानी मुश्किलात कौमी फरीज़े की अदायगी से नहीं रुक सकती। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गर्श के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। मुतअद्दिद खवाने जहन्नुम वासिल ठिकाने भी तबाह। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। खवारिज के ज़ेरे इस्तेमाल देसी साख्ता बम भी नाकारा। दहशतगर्द मकामी आबादी से फरार पर मजबूर। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद सहूलतकार भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार। और मजीद डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज फराहम ना किया गया तो अमरीका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। यूरोप में तैनात अमरीका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स कहते हैं इनके पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का हुक्म देने की वजह से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हकमाना निज़ाम की तबाही होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुकबर का 2 टोक ऐलान। कहा मगरबी इलाकों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे, तमाम कमांड सेंटर बचेगा न लूट के लिए मार्केट। ईरान में तब्दीली से मुराद निज़ाम का खात्मा नहीं रवैयों में तब्दीली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसीज़ पर मबनी है। ईरान सिर्फ अपने शहरियों पर हुक्मरानी नहीं करना चाहता बल्कि पूरे खित्ते पर असर रसूख कायम करना चाहता है। इस सूरत हाल को तब्दील होना होगा और इसे तब्दील करने का वाहिद रास्ता ये है कि उन पर ऐसा दबाव डाला जाए जिसे वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकें। ईरान ने अमरीकी इसराइली की सहूलतकारी करने वाले खलीजी ममालिक को नताइज से आगाह कर दिया। कहा ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने मत दें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बहरी नाकाबंदी जारी रहना और ईरानी फौजी अहदाफ शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारहियत के ज़ुमरे में आते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने दिफा के लिए कानूनी हक लाज़मी इस्तेमाल करेगा।
ईरान के साथ जंग अमरीका, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मौजूद अपने शहरियों को फौरी वहाँ से निकालने या तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने, इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। अमरीका की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपने शहरियों को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र की गई हैं। भारत की बदतरीन खारजा पॉलिसी, आलमी पाबंदियों के बावजूद रूस से रवाबित मोदी के लिए नया इम्तिहान। खलीजी जंग और अमरीकी तिजारती दबाव के सामने मोदी सरकार तवानाई पॉलिसी सख्त मुश्किलात का शिकार। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए एक कड़ी आजमाइश बन गई। अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ाने का खतरा मंडराने लगा। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत तेज, रजीम के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दावे झूठे साबित। अमरीकी थिंक टैंक लॉन्ग वॉर जर्नल अफगान तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती ग्रुप्स की हालिया कार्रवाइयों की तफसीलात सामने ले आया। अफगान तालिबान के साथ हालिया दिनों में मुसल्लह मुखालिफ ग्रुप्स की झड़पों ने रजीम के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के दावों का पोल खोल दिया। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनाकाद। 3000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से ज़ायद अफराद का मुआयना। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने बर वक्त और मुफ्त तबी सहूलियात की फराहमी को एक खुश आइंद इक़दाम करार दे दिया। मुफ्त मेडिकल कैंप के इनाकाद की सताइश भी की। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त। अमरीकी वफ़द का कराची में सरमायाकारी मौक़े का जायज़ा। बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। अमरीकी वफ़द को सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप, कैटी बंदर एयरपोर्ट, NED टेक पार्क और मुजवज़ा सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से मुतल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी गई। कैपिटल मार्केट्स, ज़राअत, टेक्सटाइल, तवानाई, मादनियात, सेहत और दीगर शोबाजात में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल, गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। शहरियों को सफ़र में दुश्वारी का सामना। ज़िला खैबर लंडी कोतल के दूर अफ्तादा इलाके लोहे शलमान और गदादरा में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रेले में एक सब्जी फरोश शख्स की सजूकी वैन बह गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। मीरवा, गोरजानी और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सीम नाला ओवरफ्लो, कच्चे मकानात की छतें उतर गई। मुतादी दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई खानदान घरों में महसूस। बास ने नकल मकानी शुरू। तमाम फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली मुअत्तल। टंडोला यार में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब, बिजली बंद। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश।